بیٹی، میرا اب کچھ پتا نہیں ہے، میں بچوں یا نہ بچوں۔ تم پہاڑوں والے جنگل میں اپنے ماما جی کے پاس چلی جاؤ۔ ماں، کیا کالو ماما مجھے اپنے گھر میں رکھ لے گا؟ کالو بھائی ہے میرا، کون سا کوئی غیر ہے۔ تم جاؤ میری بیٹی، پہاڑوں والے جنگل میں جا کر کالو کا پوچھ لینا۔ پھر کالو کوے کی بہن کی بیٹی کالو کی بھانجی اپنے گھر سے اڑتی ہے۔ کالو کی بھانجی کا نام منی تھا۔ منی کوی اڑتی اڑتی دوسرے جنگل پہنچ جاتی ہے۔ اسے اپنے ماما کالو کے گھر کا نہیں پتا تھا۔ وہ ایک چڑیا سے پوچھتی ہے، چڑیا چڑیا آنٹی، کالو کوے کا گھر کہاں ہے؟ بیٹی کوی، کالو کا گھر تو یہاں سے تھوڑی دور ہے، مگر کالو کوا وہ سامنے سوکھے ہوئے پیڑ سے لکڑی کاٹ رہا ہے، تم وہاں جا سکتی ہو۔ پھر منی کوی چڑیا کو دھنیہ واد بول کر وہاں سے اڑتی ہے۔ کالو کوا اپنے دھیان لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ ماما، ماما جی۔ منی، منی تم یہاں اکیلی آئی ہو؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں بہت بیمار ہے، ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ اچھا ہوا بیٹی جو تم یہاں آ گئی ہو، تمہاری مامی تمہیں مل کر بہت خوش ہوگی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ کالو کے آنے سے پہلے پہلے یہ حلوہ کھا لیتی ہوں، اگر کالو آ گیا تو سارا حلوہ کھا جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ ابھی کالو کا تو ٹائم ہی نہیں ہوا آنے کا۔ گوری کوی ایسے بولتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے۔ تم آج سمے سے پہلے ہی آ گئے، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ منی ہے، میری بہن کی بیٹی۔ مامی جی، میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ مامی؟ کون مامی؟ آپ میری مامی ہی تو ہے نا؟ چلو چلو بیٹی، گھر چلو، گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ سب گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ گوری، جلدی سے صبح والا حلوہ لے کر آؤ میری منی کے لیے۔ وہ حلوہ تو میں نے کھا لیا تھا۔ تمہارا پیٹ ہے یا کنواں؟ اتنا سارا حلوہ تم اکیلی نے کھا لیا؟ منہ سنبھال کر بات کرو، جتنا تم کما کر لاتے ہو اتنا ہی میں بھی کما کر لاتی ہوں، پھر کیوں نہ پیٹ بھر کھانا کھاؤں؟ منی بیٹی کو دانا دے دو۔ نہیں ہے، رسوئی میں نمک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماما جی، میں تھوڑا نمک ہی کھا لوں گی۔ منی رسوئی میں چلی جاتی ہے۔ میری بہن بہت بیمار ہے، اب منی کچھ دن ہمارے پاس ہی رہے گی۔ کچھ دن؟ کیا مطلب؟ اتنا چھوٹا سا تو گھر ہے، کہاں رہے گی تیری منی؟ جہاں ہم رہتے ہیں وہی یہ بھی رہ لے گی، تم زیادہ کائے نہ کرو۔ پھر دوسرے دن کالو کوا اپنا کلہاڑا اٹھا کر کام پر چلا جاتا ہے۔ مامی، مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا مامی مامی لگا رکھی ہے؟ میں تیری عمر کی ہی تو ہوں، مجھے بڑی بہن کہہ کر بلا لیا کرو، مامی کی بچی۔ ٹھیک ہے مامی جی۔ اب جاؤ اور جا کر برتن دھو لو، اگر گھر کے کام کرو گی تو پھر ہی کچھ کھانے کو ملے گا۔ منی جاتی ہے اور برتن دھونے لگتی ہے، اور گوری کوی آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتی ہے۔ منی سارے برتن دھو لیتی ہے۔ بڑی بہن، میں نے برتن دھو لیے ہیں، اب مجھے کھانا دے دیں۔ وہاں پڑا ہے ایک چنے کا دانہ، جاؤ اور جا کر کھا لو۔ منی خاموشی سے رسوئی میں جاتی ہے اور چنے کا سوکھا ہوا دانہ اٹھا کر کھانے لگتی ہے۔ ماں، تم نے تو کہا تھا کہ ماما اور مامی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، مگر مامی تو غصہ ہو گئی ہے، شاید مامی کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ اب رسوئی میں ہی رہو گی؟ جلدی سے میرے لیے گرم گرم چائے بنا کر لاؤ۔ جی بڑی بہن، میں ابھی آئی۔ اچھا ہی ہوا جو یہ منی آ گئی، مجھے مفت میں نوکرانی مل گئی ہے۔ کبوتر چاچا، 50 روپے کی گرم گرم جلیبی اور باقی کے پکوڑے ڈال دو۔ اتنا کچھ؟ کیا آج کوئی آیا ہے گھر میں؟ ہاں کبوتر چاچا، میری بھانجی آئی ہوئی ہے، اسے جلیبی اور پکوڑے بہت پسند ہیں۔ کوا گرم گرم جلیبی اور پکوڑے لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ اگر اپنے ماما کو بتایا کہ میں تم سے کام کرواتی ہوں تو
तो उसी दिन तुम्हें मैं घर से निकाल दूंगी, सुना है? जी बड़ी बहन, मैं मामा जी से कुछ नहीं कहूँगी। कालू भी घर आ जाता है। क्या छुपा रही हो मामा से? क्या नहीं बताओगी मामा को? कुछ नहीं मामा जी। मुन्नी रसोई में चली जाती है। ये गरम गरम जलेबी और पकोड़े मैं मुन्नी के लिए लाया था। कालू जी, मटके में पानी नहीं है, तुम नदी से पानी ले आओ और मैं अपनी मुन्नी बेटी को ये जलेबी और पकोड़े दे देती हूँ। कालू कौवा मटका उठाता है और नदी से पानी लेने निकल जाता है। ये ले जाए बड़ी बहन। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, काली कौवी। गोरी मुन्नी को भगाकर मजे मजे से पकोड़े और जलेबी खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी कौवी मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती, मगर मुन्नी अपनी मामी से डरती हुई अपने मामा जी से कुछ ना कहती थी। एक दिन तो गोरी कौवी ने हद ही कर दी। एक गिलास क्या टूट गया मुन्नी के पास से छूटकर। गोरी तो झाड़ू उठाकर मुन्नी को मारने लगी। बचाएं, बचाएं, मुझे बचाएं। अब तोड़ेगी गिलास? तेरे बाप का घर नहीं है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। किसी ना किसी तरह जान बचाकर मुन्नी घर से निकल जाती है। वो रोती हुई घने जंगल में चली जाती है। माँ, इससे तो अच्छा था तू मुझे मार ही देती। मामी जो मुझ पर अत्याचार करती है वो अब मैं और नहीं सह सकती। मुन्नी वहाँ बैठकर ऐसे रोने लगती है। रोते रोते मुन्नी का ध्यान सामने एक पेड़ पर जाता है जिस पर सोने के सेब लगे हुए थे। ये सेब तो सोने के हैं। मुन्नी सोने के सेब वाले पेड़ के पास जाती है। मुन्नी, तुम मेरे सोने के कुछ सेब लेकर अपनी जिंदगी बदल सकती हो। तुम अपनी मामी के अत्याचार से बच सकती हो। मुन्नी बहुत खुश होती है और उस पेड़ से कुछ सोने के सेब तोड़ लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में मुन्नी अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है और वो जंगल की सबसे अमीर कौवी बन जाती है। वो गरीबों की मदद करने लगती है। मुन्नी, तुम यहाँ हो बेटी? मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। फिर मुन्नी अपने मामा जी को सारी बात बताती है। जब मामी ने मुझे मारकर घर से निकाला तो फिर उस सेब के पेड़ ने मेरी मदद की। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल न रख सका। घर जाकर कालू कौवा जब गोरी कौवी को मुन्नी के बारे में बताता है, गोरी तो पागल हो जाती है। कहाँ है कालू जी मेरी मुन्नी? मैं अभी अपनी मुन्नी को घर में लेकर आती हूँ। गोरी कौवी भागी भागी मुन्नी के पास जाती है। अरे, मेरी मुन्नी भांजी तो बहुत अमीर बन गई है, अपनी मामी को भुला ही दिया। चल बेटी, घर चलो, हम साथ एक ही घर में रहेंगे। नहीं बड़ी बहन, मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मुझे सब दे दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी सकती हूँ। फिर निराश होकर गोरी कौवी वापस चली जाती है। गोरी कौवी, उसका बेटा जग्गू कौवा और गोरी का पति कालू कौवा अपने घर में सोए हुए थे। आधी रात थी। जग्गू कौवा जाग जाता है। मम्मा, मुझे सूसू आया है। मम्मा, मुझे सूसू आया है। जग्गू, मुझे सोने दो, तंग ना करो। गोरी कौवी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। मम्मा निकल जाएगा। मम्मा, बहुत जोरों से सूसू आया है। ना दिन को आराम करने देते हो और ना ही रात को सोने देते हो। एक तेरा बाप है, घोड़े बेचकर सो रहा है, जैसे तू मेरी अकेली का बेटा हो। जाकर बाहर पेड़ पर बैठकर कर ले सूसू। गोरी कौवी ऐसे बुड़बुड़ाती हुई उड़ती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ आए। चल उठ। बहुत मुश्किल से गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को सूसू करवाने घर से बाहर ले जाती है। ले, यहाँ इस पेड़ पर बैठकर कर ले सूसू। कल मैं मेला देखने जाऊंगा, क्या तू भी जाएगी मेरे साथ? नहीं मिट्ठू जी, मैं थक जाती हूँ।
मैं वहाँ से तुम्हें सतरंगी चूड़ियाँ लेकर दूंगा और तुम्हारे पंख भी दबा दूंगा। मिठू जी, ये पानी, ये ऊपर से पानी गिर रहा है, बारिश भी नहीं हो रही। वो कौवे का बच्चा हमारे घोंसले के ऊपर बैठकर सूसू कर रहा है। जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ हमारा घोंसला है, तुमने हमारे ऊपर ही सूसू कर दिया है। ये सुनकर जग्गू जोरों से हंसने लग जाता है। जग्गू तुमने तो तोते को ही नहला दिया। तोते तुमने भी महीनों से नहीं नहाया हुआ था। गुस्से में आकर तोता पेड़ से एक कच्चा अमरूद तोड़कर गौरी की तरफ जोर से फेंकता है। वो सीधा जाकर गौरी कव्वी की पूंछ पर लगता है और गौरी कव्वी की पूंछ टूट जाती है। मम्मा, तुम्हारी पूंछ टूट गई है। मोटी चोंच वाले तोते, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरी पूंछ ही तोड़ दी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिठू भी डर जाता है। मिठू जी, भाग कर जान बचा ले। मिठू तोता वहाँ से भाग जाता है। गौरी कव्वी थोड़ी दूर तक तो मिठू के पीछे जाती है और फिर थक हार कर वापिस आ जाती है। सुन ले हरियाली, अपने पति से कह देना कि अगर कल मेरी पूंछ ठीक ना करवाई तो मैं उसकी पूंछ भी तोड़ दूंगी और चोंच भी। चल जग्गू। गौरी कव्वी गुस्से में जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। तोता और तोती चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी के बेटे ने हमारे घोंसले के ऊपर आकर सूसू किया था और उल्टा मुझसे ही लड़ने लगी। मुझे भी गुस्सा आ गया। तोते भैया, उसकी पूंछ टूट गई है, वो बहुत गुस्से में है। अब हमें ही गौरी की पूंछ का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। गौरी कव्वी भी गुस्से में वहाँ आ जाती है। मोटी चोंच वाले, तू अब मुझसे बच नहीं सकता। तूने मुझे किसी को पूंछ दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। गौरी, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम घर जाओ। जैसे भी हो मिठू तुम्हें तुम्हारी पूंछ वापस ला कर देगा। मगर वो कैसे? तुम घर जाओ, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। गौरी चली जाती है। मिठू, अब तुम काले मुर्गे के पास जाओ और उसके कुछ पंख लेकर आओ। चिड़िया, क्या काला मुर्गा मुझे अपने पंख दे देगा? तुम उसे सारी बात बताना, फिर काला मुर्गा तुम्हारी जरूर मदद करेगा। हरियाली, तुम घर जाओ और मैं काले मुर्गे के पंख लेकर आता हूँ। फिर हरियाली घर चली जाती है और मिठू तोता काले मुर्गे के पंख लेने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद मिठू तोते को काला मुर्गा मिल ही जाता है। काले मुर्गे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। बताओ तोते, क्या मुश्किल आन पड़ी है तुम पर? फिर तोता काले मुर्गे को सारी बात बताता है। अगर तुम मुझे अपने 2-3 काले पंख दे दो तो फिर ही मेरी जान गौरी कव्वी से बच सकती है। तोते, तुम मेरे पंख ले सकते हो अगर तुम मुझे कुछ दाने मकई के ला कर दो, फिर बदले में मैं तुम्हें अपने 2-3 पंख दे दूंगा। तोता खुश हो जाता है और मकई के दाने लेने चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है मगर उसे कहीं से भी मकई के दाने नहीं मिलते। थक हार कर तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मुझे मकई के दाने चाहिए। तुम तो ऊंचा उड़ते हो, एक बार ऊंचा उड़कर मुझे देखकर बताओ कि मुझे मकई के दाने कहाँ से मिलेंगे। यार तोते, मैं अभी थक हार कर बैठा था, मगर तुम्हारे लिए मैं फिर से आसमान में जाता हूँ। फिर कबूतर एक ऊंची उड़ान लेता है और इधर उधर देखता है। किसान के खेत में। मिठू, इन दिनों मकई किसान के खेत में ही है। जाओ, तुम वहां से जाकर कुछ दाने मकई के ले लो। तोता खुश हो जाता है और किसान के खेत की तरफ उड़ जाता है। वो किसान के पास जाता है। किसान, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। हाँ तोते, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोता फिर से वही कहानी किसान को सुनाता है। अब काला मुर्गा मकई खाएगा तो फिर ही मुझे अपने काले पंख देगा और फिर ही चिड़िया गौरी की पूंछ को जुगाड़ लगाएगी और फिर ही मेरी जान बचेगी उस काली कव्वी से। तोते की बात सुनकर किसान को तोते पर दया आ जाती है और वो तोते को एक भुट्टा मकई का दे देता है।
तोता वो मकई का भुट्टा लेकर खुशी खुशी वापस उड़ता है। काला मुर्गा अपने डरबे में जाकर सोया हुआ था। तोता उसे आवाज देता है, काले मुर्गे जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मगर काला मुर्गा तो गहरी नींद सोया हुआ था। तोता वहां बैठकर काले मुर्गे के उठने का इंतजार करने लगता है। उस गंदी कौवी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। चिड़िया, मेरा पति ना जाने किस हाल में होगा। हमने तो आज मेला देखने जाना था। मैं और मिठू जी बैठे मेला देखने का ही प्लान बना रहे थे कि बीच में ये गोरी की बच्ची आ गई हमें मुसीबत में डालने के लिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, मिठू तोता आने ही वाला होगा। शाम हो जाती है और काला मुर्गा उठ जाता है। वो जोर से बोलता है और उसके 2-3 पंख टूटकर गिर जाते हैं। ले आए हो मिठू मकई का दाना। हाँ काले मुर्गे, ये लो मकई। तोता काले मुर्गे को मकई के दाने देता है और काला मुर्गा तोते को अपने टूटे हुए 2-3 पंख दे देता है। वो पंख लेकर जल्दी जल्दी मिठू तोता वापस भागता है। मैंने कर लिया, मैं काले मुर्गे के पंख ले आया हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने मेरी पूंछ का कोई जुगाड़ ना किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोरी, वैसे तुम बिना पूंछ के भी बहुत सुंदर लग रही हो। चुप कर जा ओए कालू के बच्चे, ऐसा ना हो कि मेरी पूंछ मिठू ने तोड़ी है और मैं तुम्हारी तोड़ दूं। इतने में चिड़िया भी मुर्गे के काले काले पंख लेकर आ जाती है। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ, आप मेरे साथ चलो बुलबुल डॉक्टर के पास। फिर चिड़िया गोरी कव्वी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और बुलबुल गोरी कव्वी की पूंछ की जगह काले मुर्गे के काले पंख लगा देती है, जो देखने में इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे। चिड़िया, मैं कैसी लग रही हूँ अपनी नई पूंछ के साथ? गोरी, बहुत सुंदर। अब ऐसा ना हो कि जंगल के सारे कौवे अपनी पूंछ काट कर काले मुर्गे की पूंछ लगवा लें। ये सुनकर गोरी और भी फूल जाती है और खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तोता और तोते भी मज़े से मेला देखने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू, सुन लो, अगर आज तुम कोई काम वाली मासी ना लेकर आए तो घर की सफाई और बर्तन तुम्हें ही धोने होंगे। काम वाली, मैं कहाँ से ले आऊँ काम वाली? नहीं मिलती, मैं कल भी जंगल गया था। जाओ, तोते से जाकर पूछो, उसे जंगल में सारी काम वालियों का पता होता है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। यार तोते, कोई काम वाली है तुम्हारी नजर में क्या? हाँ कौवे, एक चिड़िया मेरे पास कल ही आई थी, उसे काम की जरूरत है। सुंदर जवान है क्या वो? कौवे, तुमने काम वाली रखनी है या शादी करनी है उससे, जो उसके सुंदरता के बारे में पूछ रहे हो? नहीं, मेरा मतलब जवान और स्वस्थ होगी तो फिर ही वो मेरे घर के काम कर पाएगी। बेरी के पेड़ पर घर है उस चिड़िया का, तुम जाकर उससे पूछ लो। फिर कालू कौवा बेरी के पेड़ की तरफ चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, मुझे तोते ने भेजा है, सुना है तुम काम की खोज में हो, मुझे एक काम वाली मासी की जरूरत है। हाँ कव्वे, मैं तो कई दिनों से काम की खोज में हूँ। मैं आपके घर के सारे काम अच्छे से करूँगी। तो फिर ठीक है, तुम कल काम पर आ जाना और याद रखना, मेरी पत्नी और तुम्हारी मालकिन बहुत गुस्से वाली है, ध्यान से काम करना। जग्गू बेटा, यहाँ रसोई में मैंने 100 रुपए रखे थे, वो तुमने उठाए हैं क्या? ना मम्मा, नहीं पापा, वो पैसे जरूर पापा ले गए होंगे। ले, एक बार कालू का बच्चा कमाता है नहीं और जो पैसे मैं जमा करके रखती हूँ ले जाता है बीड़ी पीने के लिए। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कव्वी आते ही चढ़ाई कर देती है। कोई मिली काम वाली या नहीं आज भी? मुझे पानी तो पीने दो, बताता हूँ। कौवा पानी पीता है। हाँ, एक चिड़िया मिली है, वो कल से काम पर आएगी। और रसोई से पैसे क्यों उठाए थे तुमने? पैसे? कौन से पैसे?
ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे कभी चोरी की ही नहीं। पहले बाहर चोरियां करते थे, बाहर छोड़ दी तो अब घर में ही करने लगे हो। कालू कौवा अपने बेटे को घूर घूर कर देखने लगता है। जग्गू, कहाँ है तुम्हारी माँ के पैसे? मम्मा, पापा घूर रहे हैं, पापा मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। खबरदार ओए कालू, जो मेरे जग्गू की तरफ मैली आंख से देखा तो। मेरा जग्गू ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी मम्मा के चुराए हुए पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। कीकी और बुलबुले, ये पैसे मैंने अपनी मम्मा के चुराए थे, कल तुम भी चुरा लाना, कल फिर से पार्टी करेंगे। यार, मैं जब भी मम्मा के पैसे चुराता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ। तुम भी मेरी तरह अपने पापा का नाम लगा दिया करो। वाह रे जग्गू, तू तो बड़ा तेज है। अब तो कल मेरे पापा भी मम्मा से पिटेंगे जब मैं मम्मा के पैसे चुराकर पापा का नाम लगा दूंगा। चिड़िया भी कौवे के घर काम पर आ जाती है। चिड़िया, 200-400 तनख्वाह ज्यादा दे दिया करूंगी, मगर काम में कमी नहीं होनी चाहिए। ये काले बर्तन उठाओ और इन्हें चमका कर लाओ। गोरी मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम बहुत सलीके से करती हूँ। ऐसे चिड़िया कौवे के घर में काम पर लग जाती है। चिड़िया बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है, चिड़िया कपड़े धोती है और घर के सारे काम करती है और शाम को अपने घर चली जाती है। रास्ते से वो अपने बेटे के लिए खाना लेती है। मम्मा, आप सो जाएं, आप थकी हुई होंगी, मैं खाना खा लूँगा। नहीं मेरे बेटे, हम माँ बेटा दोनों साथ में खाएंगे, अभी मैंने भी खाना नहीं खाया। दोनों माँ बेटा खाना खाते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया काम पर जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं भी आपके साथ जाता हूँ, मैं काम में आपकी मदद करूँगा। कुकू बेटा, आपको कौन सा काम करना आता है? मम्मा, मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, आप दूसरे काम कर लेना और मैं कौवे मालिक के घर की सफाई कर दूँगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ ले जाती है। तुम मेरे कमरे से दूर ही रहना। जग्गू दोस्त, हम नदी पर भी तो साथ ही बैठते हैं। पहले तुम्हारी माँ हमारे घर काम नहीं करती थी, अब तुम हमारी नौकरानी के बेटे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने खिलौनों से खेलने लगता है और कुकू घर की सफाई करने लगता है। चिड़िया, जब काम खत्म हो जाए तो तुम चली जाना, मैं आज अपनी माँ वाले जंगल जा रही हूँ। जी मालकिन, बस मेरा थोड़ा सा ही काम बाकी है। गोरी चली जाती है और जग्गू कौवा अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है। उसे तो चोरी की बुरी आदत थी। वो अपनी मम्मा के पैसे चुराता है और घर से भाग जाता है। वो सीधा फास्ट फूड की दुकान पर जाता है और वहाँ जाकर पार्टी शुरू करता है। चिड़िया और उसका बेटा भी काम खत्म करके घर चले जाते हैं। शाम को घर वापस आते हुए गोरी कौवी अपने बेटे के लिए मिठाई लेती है। जब वो घर आती है तो जग्गू सोया हुआ था। उठो उठो जग्गू बेटा, मिठाई खा लो। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मम्मा, पापा तो सुबह से ही घर नहीं आए और मिठाई की भी मुझे भूख नहीं है। फिर गोरी का ध्यान अपनी अलमारी में जाता है। दरवाजा खुला था। गोरी देखती है कि अलमारी में पैसे नहीं हैं। जग्गू बेटा, इधर आ, यहाँ मैंने कुछ पैसे रखे थे। अब अगर पापा का नाम लगाया तो पकड़ा जाऊंगा, पापा तो सुबह से घर ही नहीं आए। गोरी फिर से पूछती है, जग्गू बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर आए थे? नहीं मम्मा, पापा तो नहीं आए, मगर उस काम वाली का बेटा अलमारी के पास घूम रहा था। ले गया, वही मेरे पैसे निकाल कर ले गया। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के घर। इतने में कालू कौवा भी आ जाता है। वो चिड़िया काम वाली का बेटा मेरे पैसे चुरा कर ले गया है। मैं तो सुबह से बाहर था, अगर मैं घर होता तो आज फिर जग्गू मेरा नाम ही लगाता। जग्गू, सच सच बताओ, ऐसे झूठ नहीं बोलते बेटा। मम्मा, पापा घूर रहे हैं। शर्म करो कालू, मेरे बेटे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। छोटे पक्षियों के छोटे ही काम होते हैं। चिड़िया, अपने बेटे से पूछो
اس نے میری الماری سے پیسے چرا کر کہاں رکھے ہیں؟ نہیں نہیں مما، میں تو گوری آنٹی مالکن کی الماری کے پاس بھی نہیں گیا۔ کوکو کوکو بیٹا، سچ سچ بتاؤ، مجھے شرمندہ نہ کرنا بیٹا۔ یہ تمہارے ساتھ اسی لیے تو گیا تھا، اور اسے وہاں کیا ضروری کام تھا؟ اب تو کوکو کی مما بھی کوکو پر شک کرنے لگی تھی۔ کوکو بیٹا جلدی بتاؤ، ورنہ میں بہت ماروں گی تمہیں۔ کوکو رونے لگ جاتا ہے۔ نہیں مما، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ رات کو سب سوئے ہوئے تھے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی میرے مما پاپا کو بچاؤ، میرے مما پاپا ندی میں ڈوب گئے ہیں، کوئی میری مدد کرے۔ تم چور ہو، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تم چور ہو، تم چور ہو، چور ہو، چور ہو، کوئی چور کی مدد نہ کرے، اس کے مما پاپا کو مر جانے دو۔ مما مما پاپا پاپا۔ ایسے چلاتا ہوا جگو کوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ جگو جگو بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہے کیا؟ مما مما میں چور ہوں، میں نے ہی اس دن آپ کی رسوئی سے پیسے چرائے تھے اور پاپا کا نام لگایا تھا۔ مما کل بھی آپ کی الماری سے پیسے کوکو نے نہیں بلکہ میں نے چرائے تھے۔ مما مما مجھے معاف کر دیں، مما مجھے معاف کر دیں۔ کالو کوا بھی اٹھ جاتا ہے۔ گوری، چوری کرنا غلط ہے، مجھے اس کا احساس جب ہوا تو میں بوڑھا ہو چکا تھا۔ ہم بہت بھاگیشالی ہیں جو ہمارا جگو ابھی ہی سیدھے راستے پر آ گیا ہے۔ بیٹا، میں نے اس چڑیا کے بیٹے کی بہت بے عزتی کی، بیچارے کی۔ مما میں کل کوکو سے سوری کر لوں گا۔ پھر دوسرے دن جگو کوا کوکو کے لیے گفٹ لے کر اس کے گھر جاتا ہے۔ جگو کی مما بھی ساتھ تھی۔ چڑیا، میرا جگو کچھ کہنا چاہتا ہے کوکو سے۔ کوکو میرے دوست، مجھے معاف کر دو، میں نے مما سے جھوٹ بولا کہ پیسے تم نے چرائے ہیں۔ کوکو بیٹا، جگو نے اب وعدہ کیا ہے کہ اب کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ پھر کوکو اور جگو ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، اور مما چڑیا اپنے بیٹے کی سچائی پر بہت خوش تھی۔